Do you think money and power are inevitably corrupt? I don't think money or power corrupts. I think people get corrupted with money or power. Money is a medium of getting the goods and services that you require in life. Money by itself is of no value. You have also been part of many reality shows, True. many TV shows out there. Are there like strategic gameplay or is it real human interactions? Reality shows do bring out the real you, Okay. and the situation is created that the worst in you comes out. It's upon you how you control it. आप किसके ऊपर जाते हो जब वर्ल्ड्स नॉइज आपको ओवरवेलमिंग लगता है? किसको आप मेंटर मानते हो अपना? बहुत मेंटर्स है मेरी लाइफ में, बहुत गुरु आए, बहुत गुरु गए। तंत्र साधना के माध्यम से बहुत सारे तांत्रिक और अघोरी बाबाओं से मुझे मिलने का सौभाग्य मिला। ऐसे ऐसे अघोरियों से मैंने मुलाकात की है। So do you also raise voices for minoritism? अक्सर हम मुसलमानों को माइनॉरिटी से कंफ्यूज करते हैं। मुसलमान इस देश के रिलीजियस वाइज दूसरे सबसे बड़े पॉपुलेशन है। काफ़ी इंडस्ट्री में काफ़ी वोकल हो एंड काफ़ी अनफिल्टर्ड हो, तो आपको कभी रिग्रेट वगैरह हुआ है कोई स्टेटमेंट देने के बाद या कोई ट्वीट देने के बाद? Your boy regrets nothing. I am a warrior in a garden, not a gardener at war. How much is Indian politics influenced by lobbying and power brokers compared to the public mandate? नहीं, इंडियन डेमोक्रेसी इज वेरी रोबस्ट। आपको लाइफ में अपना एक फेलियर याद है? मुझे लगता है कि जब मेरे भाई और मेरे बीच में हम सेपरेट रास्ते गए तो वो मेरी तरफ से फेलियर था, उसका साथ नहीं लग पाया। Hi guys, this is Shreyansh Goyal. Welcome to my YouTube channel. So today we have a very special guest with us who is none other than Tehseen. So he is a founder, entrepreneur, VC and a political analyst. So hi, how are you? Thank you, Shreyansh. Thank you so much for having me here and on your wonderful channel. It truly is an honor to meet all your viewers through your channel. So thank you so much. Thank you so much for coming. So I would like to ask you, you came from a politically active family, right? Was there ever pressure to conform like to certain ideology? So Congress has always been our ideology. My grandfather went to jail with Mahatma Gandhi Okay. during the freedom struggle. So when Gandhi ji was in jail in Pune, in Aga Khan Palace, so my grandfather was there serving him in jail. उनका ध्यान रख रहे थे, तो वो अरेस्ट हो गए ताकि उनके साथ ही रहे। एंड वहाँ पर देर कस्तूरबा passed away in jail. So my grandfather's wife, she did all the last rites for Kasturba, and then after that then Gandhiji was released because Kasturba had passed away. Then Gandhiji was going to Panchgani, because he was obviously, his wife had passed away, he was on a break. The government had released him from jail. My grandfather was with him, and there, either on the way to Panchgani or on the way back, I don't recollect, there was an attempt on Gandhiji's life by Godse and Apte. Okay. So my grandfather was with Gandhiji when there was an attempt on Gandhiji's life. Oh. So that's how close we are to the Congress belief and their freedom struggle. My grandfather was a part of that freedom struggle. He was Gandhiji's person. Right. Yeah. Okay. So how did you find your voice amidst that? For me, it's not about what is the family legacy. For me, it is about what do I believe in. My grandfather went to jail and stood up for India's independence. India's values. Why are we an independent country? Our democracy. The struggle, the fight for this democracy, for this freedom that we enjoy. Imagine my grandfather was with Mahatma Gandhi when he was shot. That putting your life on the line for this freedom, that I can sit here in this studio with Shreyansh and talk without fear. That is what I believe in. So that's why I put my voice out there. Because this freedom I will defend at all costs. If this freedom is gone, my life is of no use. Between life and liberty, I will choose liberty. Okay. Talking about your journey, can you tell me how you started your journey? My journey in the political sphere? Political sphere. Since childhood, बच्चे जो होते हैं ना वो खेलते टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर बनना होता है, डॉक्टर बनना होता है। मुझे एमपी बनना था। तो मैं अपने टेबल पर बैठता था, अपने स्टडी टेबल पर, अपने कमरे में, अपने रूम में, और मैं सोचता था कि मैं पार्लियामेंट में हूँ। मैं विजुअलाइज करता था कि मेरे बाजू में ये एमपी बैठा है, वो एमपी बैठा है। उस वक्त के जो नेता थे, ऑब्वियसली वो सीनियर थे, बट आई यूज्ड टू इमेजिन। मैं मिरर के सामने स्पीचेस देता था, अंग्रेजी में और हिंदी में। सो फॉर मी दैट, ये कौन से साल की बात है?
बचपन Okay. 7-8 डैड ने क्या किया था, मुझे उन्होंने अखबारों की आदत लगवाई थी, तो मैं सुबह से शाम अखबार पढ़ता था, मैं पूरा अखबार पढ़ता था फ्रंट पेज टू एंड। अक्सर बच्चे जो होते सिर्फ कार्टून पढ़ लेते या स्पोर्ट्स पेज पढ़ लेते, आई शुड रीड दी न्यूज़पेपर कॉर्नर टू कॉर्नर, ओपेड पढ़ता था, एडिटोरियल्स पढ़ते थे, और डैड हर 2-3 दिन में मुझसे उस पर क्वेश्चंस पूछते थे। आई शुड रीड इट, आई शुड लव रीडिंग दी न्यूज़पेपर। तो अखबार पढ़कर मुझे वो मोटिवेशन आया, और मैं खेलता था कि आई एम अ पॉलिटिशियन, मैं स्पीच दे रहा हूँ। जब मैं बेड पर सोता था, मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ कि मैं ट्रेन में हूँ और एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहा हूँ। जब मैं एक जो कंफर्टेबल चेयर थी घर पे, उस पर बैठा था, तो मैं विजुअलाइज करता था कि मैं प्लेन में और मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ स्पीच देने। टू विजुअलाइज दैट, मैं मिरर के सामने खड़े होकर स्पीचेस देता था। सो आई Okay. विजुअलाइज दिस। Okay. या Like Indian politics is about caste, religion, region. So how did you navigate your space in politics industry? देखिए, मैं इन रियलिटीज को मानता हूँ कि कास्ट की रियलिटी है, रिलीजन की रियलिटी है, पर इन सब रियलिटी से ऊपर एक रियलिटी है कि हम सब भारतीय हैं। आई एम एन इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली, आई एम नथिंग बट एन इंडियन। अगर आप मुझसे मेरा तिरंगा ले लोगे तो क्या बचेगा? क्या बचेगा श्रेयांश? कुछ भी नहीं. मेरे लिए वो तिरंगा सब कुछ है, और उस तिरंगे की रक्षा में, उस तिरंगे को लहराने के लिए, उस तिरंगे को आगे बढ़ाने के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो आपका बिलीफ क्या है? अगर मैं बात करूं कि अर्ली इयर्स में क्या बिलीफ था जो आपका माइंडसेट चेंज करा? इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, और वो मेरा कर्तव्य है। जो महात्मा गांधी जी कहते थे कि लाइन में खड़ा हुआ आखिरी इंसान के बारे में सोचो, तो आई बिलीव माई जर्नी इज टू टेक प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट टू एवरी सिंगल इंडियन। ये मुझे करना है, मुझे उन्हें अपॉर्चुनिटीज देनी है। इसलिए अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि वो किसके बच्चे हैं, इसलिए अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए क्योंकि उसमें उनमें टैलेंट है, उनमें क्षमता है, उनमें मेरिट है। ओके. अगर मैं बात करूं, आप काफ़ी इंडस्ट्री में काफ़ी वोकल हो एंड काफ़ी अनफिल्टर्ड हो, तो आपको कभी रिग्रेट वगैरह हुआ है कोई स्टेटमेंट देने के बाद या कोई ट्वीट देने के बाद? या बॉय रिग्रेट्स नथिंग, जो बोल दिया सो बोल दिया। अभी वो रणबीर वाली कंट्रोवर्सी हो रही है, तो मैं यहाँ आ रहा था, तो मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ अ वेरी गुड डियर फ्रेंड ऑफ माइन, शी मैसेज मी, मैंने अभी उसको रिप्लाई नहीं दिया है, व्हाट्सएप पे उसने मैसेज की कि व्हाई यू स्टैंडिंग अप। कल मुझे एक आरजे ने मैसेज किया, मेरे साथ टीवी शो पे थी, आई डिडंट नो हर। उसने कल मैसेज किया कि dude, I would love to have a friend like you. She messaged me. She's like, you're actually, you can stand up for people. श्रेयांश, मेरी लाइफ में रिग्रेट नाम का चीज नहीं है। अगर दोस्ती किए तो निभाएंगे, कुछ भी हो जाए। अगर आप और मैं दोस्त हो, मैं आपके साथ इस कमरे में लड़ूंगा, आपको गाली दूंगा, पर बाहर वाले के सामने नहीं बॉस, आप मेरे दोस्त, आपको डिफेंड करूंगा। रिग्रेट नाम की चीज है ही नहीं। अगर हमने पानी में कूदा है तो तैरना तो होगा, राइट. सोचना नहीं है बॉस कि मगरमच्छ आएगा, ठंड होगा, आइसबर्ग आएगा। तैरना है तो तैरना है, जाना है उस पार तो जाना है, रिग्रेट नहीं है। हाँ, ये चीज की मैच्योरिटी आई है कि कुछ चीजों को अलग तरीके से कहकर लोगों को साथ में लिया जा सकता है। जैसे रणबीर वाला इशू था, मैंने सबको बैलेंस किया है। मैं बहुत उसमें, लोग मुझे कह रहे वगैरह कि आपने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है, बट ये नहीं है कि मैं बैक नहीं करूंगा। बॉस, आप मेरे दोस्त हो तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। और जिस चीज में मैं यकीन रखता हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जेल नहीं होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, उसके लिए तो मैं हमेशा लड़ूंगा, चाहे जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो। अगर मुझे आपकी आजादी के लिए लड़नी है, अगर इस पॉडकास्ट में कोई गलती हो जाती तो सरकार आपको जेल में डाले? नहीं. ये क्या बात हुई? अगर हमने कोई वाहियात जोक क्रैक किया, जो रणवीर का जोक वाहियात था, घटिया था, तो ठीक है, आप उसको सेंसर कर दो, उसको निकाल दो, उसने क्या ना, उसको एडिट कर दो। बट ये कहना कि इसकी वजह से श्रेयांश और तहसीन जेल में जाएगी, नहीं, सॉरी बॉस, उसके लिए मैं लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नो, आई वोंट एक्सेप्ट। मैं इसलिए आजाद हुआ अंग्रेजों से क्योंकि मैं अपने भविष्य का मालिक बनना चाहता था। आई वॉन्टेड टू बी द मास्टर ऑफ माई डेस्टिनी। सरकार थोड़ी बनेगी मेरी डेस्टिनी की मालिक। कौन है सरकार मेरी डेस्टिनी की मालिक बनने की? मैं बनूंगा, अपनी तकदीर मैं लिखूंगा, और वो आजादी से लिखूंगा, इनके बोलने पर नहीं लिखूंगा, और इसके लिए मैं लड़ूंगा। इसलिए तो आजाद हुए, वरना अंग्रेज मालिक थे, अब सरकार मालिक होगी। अगर मैं बात करता हूँ, आजकल जो कल्चर है, कैंसिल कल्चर है,
कि आप स्पेस भी नहीं देते हो लोगों को, आप तो एक ड्रॉ कैसे करते हो एक लाइन बिटवीन देम? आई डोंट ड्रॉ लाइन, कोई लाइन नहीं है. लाइन इज हेट स्पीच, वायलेंस. वायलेंस इज द लाइन. तो सर तन से जुदा लाइन है. आप ये नहीं कह सकते लोगों को देश गोली मारो सालों को, ये नहीं कह सकते, वो वायलेंस है. उसके अलावा मेरे पास कोई लाइन नहीं है. अगर आप भाजपा से इत्तेफाक रखते हो, यू आर वेलकम, आप भी मेरे दोस्त हो. अगर मैं कांग्रेस से इत्तेफाक रखता हूँ, कोई कांग्रेस से रखता है, मैं उससे भी दोस्त हूँ. जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे, जब तक हम सेतु नहीं बनाएंगे लोगों के बीच में, हम ब्रिज नहीं बनाएंगे, कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? ब्रिज बनाना, सेतु बनाना, ये हमारा कर्तव्य है. वो मैं करूंगा 100%. मेरा काम, मैं अपने रोल को जब भारत में देखता हूं, वर्तमान में और भविष्य में, वो है कि मैं सभी लोगों के बीच में एक सेतु बनूंगा. आई विल बी द ब्रिज. मैं इनसे भी बात करूंगा, उनसे भी बात करूंगा. मैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझूंगा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझूंगा. और उसमें बैलेंस लाकर, एक कामनेस लाकर, एक स्टेबिलिटी लाकर मैं भारत को आगे ले जाऊंगा. ओके, जैसा आपने अभी बोला कि आप सेतु बनना चाहते हो, तो आप काफ़ी सारे हीटेड टीवी डिबेट्स के भी पार्ट रहे हो. तो आप ये बताओगे कि लोग आजकल मीडिया को ऐसे परस्यू करते हैं कि वो इंटेंशनली दूसरे लोगों को गिराना चाहता है, तो आप इस पे बताओगे थोड़ा बहुत? मेरे साथ ये नहीं होता है, क्योंकि मैं काम हूं और मैं बहुत ग्रैटिट्यूड में रहता हूं कि मुझे मीडिया में बहुत ज़्यादा स्पेस मिलता है और मैं उस पावर को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस्तेमाल करता हूं. जैसे वो एक मुहावरा था स्पाइडरमैन में, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई बिलीव इन दैट. मुझे ये जो स्पेस मिल रहा है टीवी के ऊपर, रोज मैं करीबन 4-5 घंटे टीवी पे होता हूँ मिनिमम, उससे मैं देश के लिए, देशवासियों के लिए और दुनिया भर के लोगों के लिए क्या संदेश दे सकता हूँ, मैं अपनी डिग्निटी कैसे रखता हूँ, ये मेरे लिए जरूरी है. हो सकता है आपका और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिबेट में अलग हो सकता है, उसमें कोई गलत बात नहीं, तभी तो डिबेट होगा ना. राइट. मैं आपको मानूं, आप हमारे डिबेट थोड़ी ना होगा. लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मैं आपको सुनूं और आप मुझे सुने, और फिर हम दोनों बात करते हैं, ऑडियंस जज करे कौन सही है कौन गलत है. कुछ बातों में हो सकता है कि आप सही हो, बहुत सी बातों में मैं सही हो सकता हूँ. वो ऑडियंस डिसाइड करेगी. वही तो लोकतंत्र है, वही तो जमहूरियत है. उसी का बेसिस, जमहूरियत का बेसिस ही वो है ना. राइट. अगर मैं आपको गाली देने लगूं, आप मुझसे अभद्र शब्दों में बात करने लगो, तो डिबेट थोड़ी होगा. We must be recipient to another point of view if we want the other point of view to be recipient to our views. ग्रेट विजन. तो अगर मैं बात करूं कि बिहाइंड द सीन्स, हाउ मच इज इंडियन पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस्ड बाय लॉबिंग एंड पावर ब्रोकर्स कंपेयर टू द पब्लिक मैंडेट? नहीं, इंडियन डेमोक्रेसी इज वेरी रोबस्ट, वेरी रोबस्ट. अल्टीमेटली इट्स अबाउट द पब्लिक मैंडेट. अभी आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री की बहुत क्रिटिसिज्म, मैं बहुत आलोचना कर रहा था ये टैक्स टेररिज्म को लेकर, और ट्विटर पे वो कैंपेन में लीड कर रहा था. फिर उन्होंने रिस्पॉन्ड करते 12 लाख कर दिया ना अभी बजट में. ठीक उसी तरह आप देखो विपक्ष में बहुत सारे ऐसे मुद्दे, जब उनके जो वोटर्स है उस पर कहते कि विपक्ष इस पर स्टैंड क्यों नहीं लेता, दे रिस्पॉन्ड टू इट. तो इंडियन पॉलिटिक्स इज टोटली पब्लिक ड्रिवन. वी आर अ वेरी रोबस्ट डेमोक्रेसी. बट द क्वेश्चन इज, शुड देयर बी ब्रोकर्स? आई डोंट थिंक सो. Should there be lobbyists? I don't mind. If somebody wants to lobby for an industry, कोई इंडस्ट्री, जैसे आपने ओला के बारे में बता दो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. तो इलेक्ट्रिक स्कूटर से हो सकता है सरकार या ब्यूरो, इट्स अ न्यू एज इंडस्ट्री, हो सकता है ब्यूरोक्रेसी को उसके बारे में इतनी चीजें नहीं पता हो जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट. जैसे आप एक इंजीनियर हो, आप मुझे बता रहे थे, तो हो सकता है कि एक इलेक्ट्रिकल स्कूटर को बनाने के लिए कुछ कंपोनेंट्स इंपोर्ट करने होंगे. वो इंपोर्ट पे अगर टैक्स ज्यादा हो, हम ग्लोबली कंपेटिटिव नहीं हो सकते इस मार्केट में, हो सकता है, और ये ब्यूरोक्रेट्स को नहीं पता है. तो अगर एक लॉबिस्ट जाके उन ब्यूरोक्रेट्स को ये बात समझाता है कि अगर हमें एक विजन बनाना है, हमें ग्लोबली कंपेटिटिव होना है, इसलिए हमें ये कंपोनेंट चाहिए, ये कंपोनेंट भारत में नहीं बनता, इसको सिर्फ इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट के लिए ये रिस्ट्रिक्शंस है, हमें इमीडिएट क्लियरेंस चाहिए होगी, हमें टैक्स करना, मुझे उसमें कोई गलत बात नहीं लगती है. दैट्स फाइन. क्यों गलत हो, क्यों गलत हो? वो अल्टीमेटली वो भी तो एक वार्तालाप है. मान लो अभी एक कोई आईएएस अफसर है, वो नोएडा को लेकर कोई पॉलिसी बना रहे हैं, या दिल्ली को लेकर, या गुरुग्राम को लेकर, और आप मान लो कि आप एक रेसिडेंट हो और आप चाहते हो कि पॉलिसी बन रही, वहां पर एक चिल्ड्रंस पार्क हो और उस चिल्ड्रंस पार्क में डॉग्स अलाउड हो. तो आप जाकर मिलोगे ना, बात करोगे ना, समझाओगे कि एक डॉग्स होगा, तो डॉग्स अगर अलाउड हो गए तो फिर डॉग स्ट्रीट पे नहीं होंगे, जिसके कारण बच्चों को नहीं काटेंगे. राइट. या आप चाहते हो कि एबीसी प्रोग्राम हो डॉग्स का, जिसके कारण अगर वैक्सीनेशन हो तो दे विल नॉट
they will not breed further, and at the same time they will not be aggressive क्योंकि वो न्यूट्रल हो जाएंगे, तो you will lobby about it. उसमें गलत क्या है? अगर पब्लिक वेलफेयर या इंडस्ट्री की वेलफेयर में कोई जाकर पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेट्स को मिलता है, there is nothing wrong. What is wrong is brokering and bribing. अगर आप उस आईएएस अफसर को पैसे देते हो ताकि पॉलिसी चेंज हो, वो गलत है. राइट. लॉबिंग इज नॉट बैड. आप अगर नहीं समझोगे, अभी जैसे कि आई एम इन द फील्ड, क्योंकि आप इंजीनियर हो, आप समझोगे क्वांटम कंप्यूटर्स, ठीक है? तो वन ऑफ माय स्टार्टअप्स, वी आर बिल्डिंग अ क्वांटम, वी बिल्ड क्वांटम कंप्यूटर्स कूलिंग सिस्टम्स. अभी वी हैव टू बिल्ड इट इन दुबई क्योंकि कूलिंग सिस्टम्स आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स एज यू नो, एंड विदाउट अ कूलिंग सिस्टम द quantum computer will not work because it has to function at no outside temperature can affect it, because then the qubits will not work. It has to be absolutely below freezing, 0 degrees below that. So I need those cooling systems. But if I get those cooling systems into India, उस पे इतने टैक्स लगते हैं और कस्टम्स में डीले होता है. So I'm doing it in we're doing it in Dubai. So now I would love that I can explain this to the government how this is important, or how a quantum computer is magnificent and very important for India. So what is wrong in that? Rather than building it in Dubai. Right. Now in Dubai, the permissions, everything was done in 30 minutes. Okay. So I'm just giving an example of how some things are not bad. What will be wrong is if I bribe the government to enable me to get systems into India on the basis of a quantum computer, but I sell it to somebody else. Right. That is wrong. So I want certain components for that cooling system. So the government gives me a tax waiver, but वो मैं car industry को बेच रहा हूँ. Okay. That's not right. Right. That is bribery. That is crime. But if I go to the government, to the honorable INT minister, or I go to the honorable minister for customs, and I say, please, or the finance minister, and I tell her that, ma'am, there's this tax component. This makes it not competitive. Therefore, India will never build a quantum computer, and we are building it in Dubai. Can you just give us this waiver? We also need faster custom clearance. We need this. We need that. And she agrees. What is wrong in that lobbying? So there's a difference, bribing and lobbying में. हम अक्सर दोनों को मिक्स कर देते हैं. राइट. गॉट इट. एंड मैंने देखा है आपको काफ़ी क्रिटिसिज्म भी फेस हुआ है क्योंकि आप कोई पार्टी देखते नहीं हो एंड बिना पार्टी देखे आप अपना व्यू बता देते हो. हाँ. तो इससे बैकलैश हुआ है आपको कभी? होता है. मैं उसको सीरियसली नहीं लेता हूँ, मतलब सीरियसली लेता हूँ, बट मैं उसको अफेक्ट नहीं होता हूँ. मैं अपनी मेडिटेशन में लग जाता हूँ, अपने म्यूजिक में लग जाता हूँ, अपने दोस्तों के साथ लग जाता हूँ. ओके. बस मुझे फर्क नहीं पड़ता. मुझे जो बोलना है मैं बोलूँगा. आपको दिक्कत है तो आपको दिक्कत है. आपको मुझे गाली देनी है, ट्रेंड करना है, प्लीज मेक मी पॉपुलर. आई एम ग्रेटफुल टू यू. आई एम नॉट गोना बैक डाउन. आई डोंट बैक डाउन. मुझे जो बोलना है बोलना है. अगर भाजपा कुछ गलत करती है, कर रही है. मैं कांग्रेस का वोटर हूँ, गलत कर रही है, कर रही है. देश मेरी पार्टी है, देश के लोग मेरे लोग हैं. मैं उनके लिए खड़ा हूँ और किसी के लिए नहीं. तो आपको थ्रेट्स तो मिलते रहते होंगे? हाँ, मिलते हैं. Okay. अभी ये पुलिस सिक्योरिटी है, गनमैन है. अब क्या वो है, पागल जैसे लोग बिहेव करते, कभी कभी अग्रेसिव हो जाते फॉर नो रीजन, और कुछ सीरियस होते. जैसे एक व्यक्ति मुझे थ्रेटनिंग कॉल दे रहा है. यही इसी शहर में आया था. एक दूसरे पॉडकास्टर के घर पर गया, वो थ्रेटन टू ब्लो मी अप. जिहाद की बात कर रहा था. एक जो कुछ थ्रेट्स आए थे वो लेबनान से आए थे, क्योंकि मैंने कहा था कि हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है. हमास और हिजबुल्लाह जो है वो मैं मानता हूँ हम टेरर ऑर्गेनाइजेशन से. उन्होंने मुसलमानों को ज़्यादा मारा है, गलत है वो. लेकिन मैं गाज़ा के बच्चों के साथ खड़ा हूँ. बच्चों को नहीं मारना चाहिए, हमास को मारना चाहिए. तो थ्रेट देते. मैं एक बीजेपी स्पोक्सपर्सन के साथ खड़ा था कि उसका सर तन से जुदा नहीं होगा. उसने चाहे कुछ भी कहा, वो गलत होगा, वो कोर्ट तय करेगा. आप उसके साथ मॉब लिंचिंग नहीं करोगे. मैं रणवीर के साथ खड़ा हूँ. मैं एक फैक्ट चेकर के साथ खड़ा था जिसको राइट विंग पसंद नहीं करती. मैं बहुत सारे इन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करता हूँ, विजिलेंटिज्म को. तो इस साइड के लोग मुझे कहते कि नहीं, आप ऐसे इस तरह की बातें नहीं कर सकते. तो कुछ गुंडे थे कई वर्ष पहले, वो आए थे मुझ पर एसिड फेंकने. तो ये होता है, ठीक है यार. इनसे डर के मैं थोड़ी ना बात करना बंद करूँगा. जो स्टैंड, मैं अपने देश के लिए बोल रहा हूँ, इनसे थोड़ी बोलूँगा. राइट. काफ़ी लोग इस वर्ल्ड में देखा है मैंने कि डोमिनेट करते हैं अपना पर्सनल नैरेटिव सेट करने का,
तो आप इससे मिस इंटरप्रेट नहीं होते हो कि दूसरे नैरेटिव सेट कर रहे हैं एंड आप भी एक नैरेटिव सेट कर रहे हो, तो वो इन्फ्लुएंस वगैरह नहीं होता? कौन, मैं या कोई और? आप। मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता। मुझे यूनिवर्स ने एक चीज़ दी है मेरे कान के बीच में, ये मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। मैं क्यों इन्फ्लुएंस हूँ? मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुनूंगा और वो वैलिड होगा, वो करेक्ट होगा, तो उसकी सराहना करूंगा, उस पर मैं चलूंगा, उस पर अमल करूंगा, उसमें उसको मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा। आप कुछ भी इलॉजिकल चीज बोल दो तो मेरे पास ये नहीं है क्या सोचने के लिए? इसका मैं सोचूंगा, जो एक्सेप्टेड है उसे एक्सेप्ट करूंगा। हो सकता है आप में और मेरे बहुत डाइवर्जेंट व्यूज हो, तो मैं उसको मेल भी लग कर सकता हूँ बीच में। नथिंग रॉन्ग इन दैट, नथिंग रॉन्ग इन दैट। तो आप कंट्रोल करते हो क्या अपने पर्सनल नैरेटिव्स को? मैं कोई चीज को कंट्रोल नहीं करता, मैं सिर्फ अपने मन को कंट्रोल करता हूँ। बाकी मुझे जो बोलना है मैं बोलता हूँ, वो यूनिवर्स में जाता है, यूनिवर्स में वायरल होता है। बाकी मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं उस चीज को कंट्रोल नहीं करता। कितनी चीजों को आप कंट्रोल करोगे? इतना बड़ा यूनिवर्स है, क्या आप कंट्रोल करोगे? राइट। मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ, बाकी चीज को मैं छोड़ देता हूँ। जो होगा देखा जाएगा। राइट। अगर मैं बात करूं, आप बिजनेस और पॉलिटिक्स दोनों में सोशली एक्टिव हो, तो आप बताओगे कि दोनों कैसे हैंडल करते हो आप ये साथ बाई साथ? मैं बिजनेस में पॉलिटिक्स नहीं करता, पॉलिटिक्स में बिजनेस नहीं करता। ग्रेट सिंपल। आंसर। ओके। तो इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन करते हो? जैसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आते होंगे दोनों में, तो दोनों की इंटीग्रिटी अलग होगी, तो कैसे मेंटेन करते हो आप? इंटीग्रिटी होती क्या है? किसकी इंटीग्रिटी है? आपकी इंटीग्रिटी, मेरी इंटीग्रिटी। आपकी मोरालिटी, मेरी मोरालिटी। कौन सी मोरालिटी? मैं नहीं ढोंग करता हूं सबसे ज्यादा मॉरल होने का, लेकिन हाँ, मैं किसी को हार्म नहीं करूंगा, मैं किसी को हर्ट नहीं करूंगा, मैं किसी से बदतमीजी से बात नहीं करूंगा। लेकिन कोई मुझसे बदतमीजी से बात करे, मैं वो सहन भी नहीं करूंगा। तो मुझे हाथ जोड़ना आता है और मैं हाथ जोड़ते विनम्रता से बात करूंगा। लेकिन किसी ने मुझे उंगली दिखाई, मैं उसको कहूँगा भाई उंगली नीचे रख दे, और उसने उंगली मेरी आंख में डालने की कोशिश की तो मैं उंगली भी तोड़ दूंगा। आई एम अ वॉरियर इन अ गार्डन, नॉट अ गार्डनर एट वॉर। मेरे डैड हमेशा ही कहते थे, आई एम अ वॉरियर इन अ गार्डन, नॉट अ गार्डनर एट वॉर। मैं वॉरियर हूं, मैं गार्डन में हूं, मैं शांति से हूं। मुझे नहीं करना है आपसे, मुझे अपनी लाइफ जी रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। आप मुझे कुछ कहोगे, मैं हाथ जोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन आप मुझे या मेरे परिवार को या मेरे दोस्तों को हार्म करोगे तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो मैं वायलेंस नहीं चाहता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं आप नहीं चाहते। पर अगर आपने एक लक्ष्मण रेखा क्रॉस करी, फिर वो आपका कॉन्सिक्वेंसेस है। फिर उस कॉन्सिक्वेंसेस के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं शुरू करता नहीं हूं, और शुरू हो गया तो मैं छोड़ता नहीं हूं। राइट। क्लियर? नो इफ नो बट। मैं एमएमए करता हूं। अभी तो मैं 1-1.5 साल से फाइट नहीं की, बिकॉज मैंने कभी लड़ाई से डरा, मैं एमएमए में कभी लड़ता, रिंग में उतरने से डरता नहीं था। तो एक प्रोफेशनल एमएमए फाइटर था, बहुत ही प्रोफेशनल फाइटर था, और मेरे कोच ने कहा कि, उसका कजन था मेरे कोच का, तो उसने कहा कि उससे लड़ लो। अब एमएमए में ये है कि मेरी जो स्ट्रेंथ है मैं जानता हूँ, वो है ग्रैपलिंग। मैं जमीन पे लेकर जमीन पे लड़ता हूँ। ऑल्सो बिकॉज मेरे पास हाइट एडवांटेज नहीं है, स्ट्रेंथ बहुत है, हाइट एडवांटेज नहीं। तो फॉर मी, अगर मैं व्यक्ति को जमीन पे ले लूँ, जमीन पे मैं लड़ना बहुत पसंद करता हूँ। रेसलिंग में, ग्रैपलिंग में, गला पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, मुड़ लो, वो ग्रैपलिंग मेरा बहुत अच्छा मेरी स्ट्रेंथ है। वो प्रोफेशनल फाइटर था, और प्रोफेशनल फाइटर के पहले वो बॉक्सर था प्रोफेशनल। उसकी स्ट्रेंथ थी खड़े होकर लड़ना। अब मैं कितना भी कोशिश कर दूं, मैं उसको जमीन पे ले ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो और वो मुझसे लंबा था, तो उसकी रीच ज्यादा थी। तो मेरी ये कोशिश थी कि मैं ग्रैपलिंग में उसको जमीन पे लो, मैं अपने टेरिटरी पे लड़ूं, पर वो मुझे इसकी टेरिटरी, अपनी टेरिटरी पे लेने ही नहीं दे रहा था। हम खड़े होते लड़ रहे। अब ये था कि यार वो भी पीट रहा है, मैं भी पीट रहा हूँ, दोनों एक दूसरे को पीट रहे हैं। अब तो बॉक्सिंग चल रहा है, किकिंग भी नहीं होता, इट वॉज अ बॉक्सिंग मैच, थोड़ा बहुत किकिंग था। अब वो तो प्रोफेशनल बॉक्सर है, हिट, और ऐसे लग रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था, बट मैंने अपना फेस एक्सप्रेशन चेंज नहीं किया, मैं स्माइल कर रहा था। वो जितना मारता था मैं स्माइल करता था। वो भी कंफ्यूज कि यार ये तो पंच से कोई भी चला जाएगा बाहर, नॉकआउट होगा। और मैंने उसको बहुत अच्छे पंचेस दिए। एक मुझे याद है वो पंच, मैंने आई गिव हिम, मैंने उसको पहला मैंने उसको लेफ्ट हैंड से थोड़ा पुश किया, और जैसे मुझे स्पेस मिला मैंने उसको राइट अपर कट दिया। सो आई गिव हिम एन अपर कट, एंड इट वाज अ सॉलिड अपर कट, लाइक आवाज आया,
मैंने ब्लड देखा, मतलब अब गेम खत्म, ये इसके बाद ये रिकवर नहीं होगा, और उसने स्माइल कर दिया, मैं बोला ये क्या, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस अंदर से टूट गया, मतलब यार इसको ये नहीं लगा वो यहाँ से, और अगर आपका चिन ब्लीड करता ना, साइकोलॉजिकली आप डिस्ट्रॉय होते, वो स्माइल कर दिया, आई कुड अपर कट में आवाज नहीं आती, आई कुड हियर द नॉइज, मतलब मैंने सब कुछ दे दिया उस शॉट के अंदर, दैट वाज माय बेस्ट शॉट, और वो खड़ा था चट्टान की तरह, स्माइल किया और पट करते मुझे मारा फिर से, दैट फाइट आई लर्न समथिंग इस फाइट में, मैंने ऑब्वियसली अगर पॉइंट्स पे होता वो जीत जाता, बट इट वाज अ ड्रॉ क्योंकि इट वाज पॉइंट्स, बट आई लर्न समथिंग कि यू हैव टू स्टैंड अप, भागना नहीं है, लड़ाई से भागना नहीं है, one of my last fights in MMA, but it was good fun. Okay. Do you think money and power are inevitably corrupt, or do you have a way to stay grounded? I don't think money or power corrupts. I think people get corrupted with money or power. Okay. There's nothing wrong in having money or having power. It is how you use the money and how you use the power that is important. Right. Do you use the power to help make people's lives better? If you have power, for example, with bureaucrats, do you make that phone call to make sure a unfortunate person gets an admission in a hospital, etc., when he needs help or critical help that he requires? If you have money, can you help other people who are less privileged than you get some sort of benefit? It's how you use it. And you know, I want to say one thing. Money is not the only thing that's required in life. Money is a medium of getting the goods and services that you require in life. Money by itself is of no value. By itself, what value is money? If you have to buy this glass of water, what you need is the glass or the water. Whether you have money or no is irrelevant. Having money makes it easy to buy. But what is important is the good that you're getting, the glass. The money per se is not the most important thing. Okay. It's a medium of getting that glass. So it doesn't matter. If you're thirsty in a desert and you have 100 crores, but you don't have a glass of water, what use is that 100 crores? Right. But if you have no money, but you have a medium of getting a glass of water in the desert, that's more valuable. So money by itself is of no value. Money is only valuable because it helps you get certain goods. But what is most valuable is the goods that you want. So, like, talking about this ideology, like, what is the hardest business decision that you have ever taken? Many. I've taken many hard decisions. But I think the hardest that I'm taken is now not being attached to anything, whether it's in business or otherwise. I'm not attached. Business, personal relationships. I've let go of attachment. It doesn't drive me. I'm only interested in giving good energies. That's the only thing that drives me, nothing else. Only about giving good energies. Okay. Does this also test your moral value? So that's why I give good energies. Okay. For me, there will always be problems. You can have problems in every field, politics, business, television, whatever I do. How I respond to those problems is upon me. Okay. Challenges will be there. It's how you respond that defines you. There is nobody who doesn't have a problem. There's nobody who doesn't have challenges. It's how you deal with the challenges that define you. So I deal with it. Do I deal with it within my sphere of what is good energy, within my sphere of what I think is correct, my belief system? Or do I deal with it compromising what I believe in? That is what defines me. So challenges are there. I don't get scared of challenges. And I'm not attached. The only thing I want is, can I be good to people? Can I give good energies to people? Is my vibe good? That's the only thing that I try and work on. I work on my vibe. People work on diction, attitude, earning money. I work on my vibe. The rest of it will follow. If my vibe is good, I'll anyways have people. I'll anyways have my crew. I'll anyways have my team. I'll have everyone. What do I? It's not about money. It's about vibe. Got it. Yeah. You have also been part of many reality shows, True. many TV shows out there. True. So talking about that, like we see a lot of emotions and lot of drama out there, lot of conflicts. So are there like strategic gameplay, or is it real human interactions? Real human interactions. And it brings out the worst in most people. Okay. Didn't bring it out in me. Therefore, in reality shows, I'm not the most entertaining person because I can be calm.
I would wake up at 4 o'clock, do my meditation. बाकी लोग सोए हुए. Reality shows do bring out the real you, Okay. and the situation is created that the worst in you comes out. Mm-hmm. It's upon you how you control it. I control it. So you were also part of Big Boss, right? Hmm. So did that teach you anything related to things that you did not knew before? Yeah, it taught me that we are as youngsters more interested in sensationalism. But Big Boss has also been a very fulfilling and blessed opportunity for me. It gave me the kind of facial recognition that I had one audience, which is the news audience, which is massive, but it also gave me an entertainment audience. It gave me great friends. Sid, who's no longer with us, Devalina, Rashmi, Paras. So it was so fulfilling for me. It is. I'm so grateful that I got the opportunity. Yeah. Talking about Big Boss, तो ये आपका इमेज बचाया कि पर्सनल ब्रांड बनाया आपका? मेरा पर्सनल ब्रांड थोड़ी ना कोई रियलिटी शो बनेगा. मेरा ब्रांड तो मैं खुद हूँ. बट आई डोंट केयर अबाउट what the image was. I was me. I was authentic. And to that extent, I was also in that reality show not sensational. I was consistent. So I was who I was. It doesn't matter. That's who I was. I don't look at reality shows to make my brand or not make my brand. I was looking at it to reach out to a new audience and authentically. Today, when you look back at the Big Boss episodes that I did, I haven't seen them, but I would come across as a calm, composed guy who had fun, was cool, who was a chill guy. So it's good. And that's who I am. I'm chill. I'm happy. You saw me, my friends were here. I'm chill with everyone. I'm just chill. So that's how I am. And that's me. That's authentically. That's me in an authentic manner. I would just be like, let's go get a bite. Let's go do this. Let's do it. I'm very, so for me, that is my universe. I was telling somebody yesterday, for me, my friends are my universe. I would do like anything for my friends. I told you earlier also. Right. तो मुझे बहुत पसंद है. मेरी like on my way here, I was calling up my friends. I'm going to Pune next week. So I was telling one of my friends, is she taking me out for dinner? Where is she taking me? So I was calling her up because she runs restaurants. She's a PR girl. So I was like, where will you take me? Tell me, whatever. Then I was connecting with my other friends. So I was making all these plans. So for me, it's all about chilling, hanging, being, and with my friends, there is no pretense. Anyways, I don't have pretense, but there's no pressure of sort of being the political analyst Tehseen. I can just be me. These are people I hang with. But take my shoes off and put my feet on the table. So that is my space, and I love my space. अगर मैं बात करूं डेमोक्रेसी है इंडिया में तो मेजॉरिटिज्म का ज़्यादा सुना जाता है. Correct. एंड माइनॉरिज्म को इग्नोर किया जाता है, उतना ज़्यादा सुना नहीं जाता. सो डू यू ऑल्सो रेज वॉइसेस फॉर माइनॉरिज्म? Yeah, and what is minority? पहले हमें minority क्या है वो समझना होगा. अक्सर हम मुसलमानों को minority से confuse करते हैं. ओके. मुसलमान इस देश के रिलीजियस वाइज दूसरे सबसे बड़े पॉपुलेशन है. तो क्या वो माइनॉरिटी हुए या सेकंड बिगेस्ट मेजॉरिटी हुए? बट माइनॉरिटी क्या होता है? माइनॉरिटी धर्म नहीं. माइनॉरिटी हर एक एरिया में माइनॉरिटिज्म आ सकता है. जैसे हो सकता है आप एक कन्नड़ा स्पीकिंग व्यक्ति हो जिसको हिंदी नहीं आती और आप नॉर्थ इंडिया में हो, उत्तर प्रदेश या दिल्ली में. यू आर अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी. हो सकता है you have a different sexual preference. You could be a sexual minority. हो सकता है आप एक OBC समाज या SC समाज से आते हो और आप एक ऐसे एरिया में हो जहाँ पर अधिकतर फॉरवर्ड कास्ट रहते हो. You could be a caste minority. हो सकता है कि ब्राह्मण हो और आप एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ अधिकतर बैकवर्ड कास्ट के लोग रहते हैं, OBC समाज के, दलित समाज के, माइनॉरिटी समाज के. You could be a caste minority even there. What is minority? क्या minority सिर्फ धर्म है? क्या सिर्फ मुसलमान minority है? Minority हर वो व्यक्ति है जो अन्य लोग कुछ और है और उसमें वो है. और उस एक व्यक्ति के लिए अगर आपको कर्नाटका में कन्नड़ा बोलना नहीं आता, आप इंग्लिश में वार्तालाप कर सकते हैं, हिंदी में, तो भी आपके राइट्स, आपके ह्यूमन राइट्स उतने ही जरूरी है. जैसे अगर आप एक होमोसेक्सुअल है और आप एक लड़का हो, लड़के से प्यार करते हो
और आप एक ऐसे सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी, मेरे तो जैसे सारे शादीशुदा कपल है, आपका ह्यूमन राइट्स और राइट टू प्राइवेसी उतना ही इंपॉर्टेंट है और मैं उसके लिए खड़ा हूं. आई एम स्टैंडिंग फॉर दैट. इंसानियत, माइनॉरिटी राइट्स इज ह्यूमन राइट्स बट नॉट टू मिसयूज. हम अक्सर भारत में से सिर्फ मुसलमानों के कॉन्टेक्स्ट में सोचते हैं, लेकिन मुसलमान सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है. हम उसके बारे में क्यों और उन मुसलमानों में जो माइनॉरिटीज, हम उनके बारे में क्यों नहीं सोचते? उनके अंदर भी तो माइनॉरिटीज है, पसमंदा समाज है, उनमें भी तो माइनॉरिटीज है. राइट. तो माइनॉरिटी कौन है? और इस देश का सबसे बड़ा माइनॉरिटी है इस देश का गरीब. वो संख्या में सबसे ज्यादा है पर ताकत में सबसे कम है. वो मेरा माइनॉरिटी है, मेरा गरीब, मेरा मिडिल क्लास. मिडिल क्लास के पास क्या है आप बताओ मुझे? जो आपका ये पॉडकास्ट देख रहे हो, मिडिल क्लास के अधिकतर लोग, क्या है उनके पास? वो बेचारे हाथ भी नहीं फैला सकते सरकार के सामने क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट और प्राइड है. और वो लीवे भी नहीं है कि 100 करोड़ खर्च कर दिया, 1 करोड़ 2 करोड़ खर्च कर दिया. एक हॉस्पिटलाइजेशन दूर है वो बैंकरप्सी से. दैट मिडिल क्लास इज द लार्जेस्ट माइनॉरिटी इन इंडिया. उस मिडिल क्लास के लिए मैं खड़ा हूं, उस मिडिल क्लास के लिए मैं लड़ता हूं. उनके टैक्सेस कम हो, उन पे जीएसटी का एक्सटॉर्शन ना हो, मैं उनके लिए खड़ा हूं. उनकी जिंदगी बेहतर हो, उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, उनको हेल्थ केयर सस्ते में मिले. दैट इज द माइनॉरिटी पॉलिटिक्स आई स्टैंड फॉर. ओके. तो जैसे हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो कोई पॉलिटिकल टैबू भी है क्या जो कोई बात नहीं करता जिसके बारे में? जैसे कि कुछ ऐसा कोई टैबू है क्या जो लोग बात नहीं करते लेकिन पता है कि सबको कि टैबू है ये? मैं तो हर चीज के बारे में बात करता हूँ. आपके पॉडकास्ट पे की कौन सी चीज पे मैंने बात नहीं की? होमोसेक्सुअलिटी पे की, माइनॉरिटीज मुसलमान पे की, कास्ट पे की, रिलीजन पे की. कोई चीज, हम एक डेमोक्रेसी में रहते. आप अदब से हर चीज पे बात करो. अगर मैं बात करूं, आप क्रिटिक भी हो, सपोर्टर भी हो, तो आप ये बताओ कि बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट क्या है अगर आज की पॉलिटिकल इंडस्ट्री में बताऊं? हम मुद्दों पर बात नहीं करते और मेरी डिसअपॉइंटमेंट उस चीज पे है. मैं जब अपने आप को देखता हूँ, मैं जब अपने आप को विजुअलाइज करता हूँ कि जब मैं देश का ऑपोजिशन को लीड करूंगा, मुद्दों पर लीड करो. अब देखिए, सब लोग पॉडकास्टर के पीछे पड़े हुए हैं. रणवीर, विपक्ष के पास अपॉर्चुनिटी है सरकार को घेरने के लिए. मणिपुर में चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर दिए. 1.5 साल 2 साल मणिपुर जल रहा है, ड्रोन से अटैक हो रहे. कितने लोगों को पता है? विपक्ष उठा ही नहीं रहा है. हम मुद्दे ही नहीं उठा रहे जो सही है. मणिपुर में बम और रॉकेट्स चल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर रहा है और सरकार तो डाइवर्ट करेगी. सरकार को क्यों जिम्मेदार जवाब देना है? विपक्ष पॉडकास्टर के बारे में बात कर रहा है, भाई उस पर बात करो ना. महाकुंभ चल रहा है इस वक्त, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम हुआ. सरकार को घेरना चाहिए. लोग वहां पर गुजर गए, स्टैम्पीड हुआ, शहीद हो गए, वहां पर लोग गुजर गए. सरकार को घेरना चाहिए. पॉडकास्ट के, सरकार तो पॉडकास्ट पे डाइवर्ट करेगी, विपक्ष क्यों हो रही है डाइवर्ट? डिसअपॉइंटमेंट है. बांग्लादेश को एनजीओ चला रहा है, एनजीओ चला रहा है बांग्लादेश को. वो एनजीओ वाले को, झोले वाले को निकालना है, बाहर फेंकना है. कौन? पॉडकास्टर के मुद्दे पर सरकार तो की, विपक्ष भी उस पर लग गया. कोई मुद्दा है क्या ये? ये प्रॉब्लम है, लैक ऑफ ग्रेविटास. देखो, सरकार तो पॉलिटिक्स करेगी, सरकार को जवाब नहीं देना है तो ठीक है, हर सरकार को जवाब नहीं देना था. तो सरकार सोचती है हम सरकार में क्यों जवाब दें, और को बचना है क्योंकि डेमोक्रेसी है तो बचना है जवाब से. तो सरकार को घेरने की जवाबदारी किसकी है? विपक्ष की. विपक्ष की उनके ट्रैप में पड़ती है. विपक्ष को घेरना चाहिए. पार्लियामेंट चालू है, क्यों नहीं घेर रही है? ये मुद्दों को क्यों नहीं उठा रही है? वो प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम वो है. तो अगर आप ये सारी मुद्दों की बात करो तो एक लाइन है क्या पेट्रियोटिज्म और जिग्नोइज्म में? हाँ, लाइन है. पेट्रियोटिज्म है कि मैं अपने देश के लिए मर जाऊं या किसी बाहर वाले को मार दो अपने देश के लिए. जिंगोइज्म है कि मैं जबरदस्ती का कोई मुद्दा बनाऊं, श्रेयांश अपने ये देश के खिलाफ जबरदस्ती का, और फिर मैं आपको पीटूं. पेट्रियोटिज्म है कि मैं हर गरीब को गरीबी से बाहर निकालूं. जिंगोइज्म है अगर कोई मुझे बताए कि यहाँ पर गरीबी है, मैं कहूँ नहीं, आप मेरे देश के खिलाफ हो, आप मेरे देश का अपमान कर रहे हो. वो बहुत डिफाइंड लाइन है. पेट्रियोटिज्म है कि मैं हर बच्चे को प्रोटीन दूं. जिंगोइज्म है मैं इस चीज को नकार दूं, नहीं नहीं आप मेरे देश का अपमान कर रहे, मेरे बच्चे मैलनरिश नहीं है. वो जिंगोइज्म है, आप मेरे देश के खिलाफ है. पेट्रियोटिज्म है पाकिस्तान को मैं कुचल दूं, बांग्लादेश में वो एनजीओ को मैं हटा दूं बाहर. जिंगोइज्म है कि मेरे देश में कुछ हो गया तो मैं आपको कहूँ आप जाओ बांग्लादेश, आप जाओ पाकिस्तान, मेरा देश का आदमी है.
मेरी और आपकी लड़ाई होगी वो मेरे घर की लड़ाई है, मैं बाहर नहीं लड़ूंगा। राइट, डिफरेंस इन द टू। ओके, पेट्रियोटिज्म है कि मैं हर भारतीय को, तहसीन पुनाला हर भारतीय को उतनी क्षमता देगा कि हर भारतीय मिलियनियर बनेगा, हर भारतीय। उसके पास अच्छी शिक्षा, अच्छे एजुकेशन, अच्छे जॉब्स, अच्छे अपॉर्चुनिटीज होगी। वो तहसीन की क्षमता, वो पेट्रियोटिज्म है, वो तहसीन की पेट्रियोटिज्म है। मेरे टैक्स पॉलिसी से, मेरे विजन से, मेरी टेक्नोलॉजिकल इंटरव्यूर से मैं देश को बदल दूंगा, देशवासियों की जिंदगी बेहतर करूंगा। दैट इज पेट्रियोटिज्म। मैं हर एक व्यक्ति को एक अच्छी जिंदगी दूंगा, किसी को किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। वो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स में जाएगी, वर्ल्ड क्लास, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो। वो टॉप क्लास पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, उनके बच्चे टॉप क्लास स्कूल्स में पढ़ेंगे। ये तहसीन पुनाला करते दिखाएगा। ये मेरा पेट्रियोटिज्म है, ये मेरा विजन है इस देश के लिए, और मैं करूंगा। काफ़ी उच्च विचार। एंड एज एन एंटरप्रेन्योर मैं बताऊंगा कि आप वर्क कल्चर के बारे में क्या सोचते हो कि कैसा होना चाहिए वर्क वो कल्चर? कल्चर एक डिजीज है, ओके, और इस डिजीज को जितना जल्दी हम समाप्त करें अच्छा है। हम्म, वोकिज्म एक डिजीज है, और वोकिज्म के साथ आ गया है वो पोर्शे पॉवर्टी, मर्सिडीज मार्क्सिज्म। पोर्शे में जा रहे हो और पॉवर्टी की बात कर रहे हो। 5 स्टार होटल में शैम्पेन और चीज के ऊपर आप गरीबी और मैल न्यूट्रिशन को डिस्कस कर रहे हो, और उसके साथ है वोकिज्म। मैं इस चीज को मानता हूं कि जेंडर फ्लूइड है, बट सेक्स डिटरमिन्ड है। फॉर एग्जाम्पल, एक पुरुष और एक औरत में 100 साल के बाद जब एक पुरुष का स्केलेटन डिस्कवर होगा और औरत का, सारे बोन सेम हो गए, सर से लेकर टोट तक, सिर्फ पेल्विक एरिया का बोन अलग होगा। इसलिए सेक्स आपका हमेशा प्री डिटरमिन्ड है। जेंडर आप कुछ भी हो सकते हो। अगर श्रेयांश को लगता है कि वो एक चाइनीज कबूतर है तो अपने कमरे में गुटर गुटर करे, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर श्रेयांश ये बोले कि आज सुबह उठ के मुझे ये लगा कि मैं लड़की और मैं लड़की के बाथरूम में जाते उनको नंगा देखूंगा, वो गलत है। तहसीन को लगे आज सुबह उठ के मैं, क्योंकि मैं एमएमए हूं, मैं लड़की हूं तो मैं लड़की के साथ एमएमए करती उसको पीटूं, वो गलत है। सॉरी, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर श्रेयांश को लगता है कि वो चाइनीज कबूतर है, जाए ना अपने कमरे में गुटर गुटर करे, सोचा उसका कमरा केज है और करे, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। किसी और को लगता है कि वो लड़का है पर उसको लड़की के कपड़े पहने, पहने अपने बेडरूम में, बाहर पहने, बट दूसरों को डिस्टर्ब ना करे, और दूसरों के बाथरूम में जाए, जेंडर न्यूट्रल बाथरूम में जाओ जहां पर किसी को दिक्कत नहीं है। आप आदमी हो, औरत हो, कुछ हो, जेंडर न्यूट्रल बाथरूम में जाओ। पर आप एक फिजिकल मर्द हो 6 फुट या मेरे जैसे मस्क्यूलर मर्द, और आप जाओगे लड़की के बाथरूम में, जब वो कहां कपड़े चेंज करोगे, मुझे लड़की की फीलिंग आ जा रही, ये कहां से जस्टिफाइड हो? आप जाओगे लड़कियों के जेल में मर्द होके और वहां पे उनका रेप करोगे, ये कहां पर एक्सेप्टेड है? और ये बच्चों को आप बता रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो, आप ही हो शी हो। भैया 18 के बाद अगर कोई लड़के को लगता है कि उस लड़की है, या लड़की को लगता है कि वो लड़का है, या कोई लड़की को लड़की के कपड़े पहने या लड़के को लड़की के कपड़े पहने, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। आप जो करना है करो, बाहर भी करो, उसमें भी मुझे आपत्ति नहीं, और जेंडर न्यूट्रल बाथरूम में। लेकिन आप बच्चों को ये स्कूल में कह रहे हो यू आर नॉट ही शी और दे देम, ये क्या बकवास है? कंफ्यूज कर रहे हो, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो भाई? व्हाट नॉनसेंस। अब देखो मेरा छोटा बच्चा है, ही इज 2, अब 2 होगा मार्च में, अब वो प्योर बॉय बॉय ही है। उसको सिर्फ पाइप अच्छे लगते हैं, उसको हर पाइप पे चढ़ना है, उसको स्पाइडर पकड़ना है, सांप पकड़ना है, उसको घर के बाहर ही बैठना है, उसको अंदर ही, वो ही इज अ बॉय बॉय। वो कहीं उसको बाहर ही नहीं है घर के, ऐसा कोई पाइप नहीं जिस पे उसको चढ़ना नहीं है, कोई फ्लोर उसको पाइप पे चढ़ना है, वो पाइप डाटा पाइप पाइप पे चढ़ना है, वो हर पाइप में अपना हाथ डालता है, उसको सांप से खेलना है, कॉकरोच खेलना है, वो है लड़का। अब मैं उसको कंफ्यूज करूं भाई, तो दे दे मैं। ठीक मेरे बेस्ट फ्रेंड की लड़की इतनी क्यूट, इतनी इतनी ब्यूटीफुल, वो जिस तरह से रिबन्स बांधती है, जिस तरह से चलती है, वो नहीं कि वो गार्डन में नहीं खेलती, शी प्लेज एट माय सन इन द गार्डन, जाती है वो भी सांप के पीछे, ऐसा नहीं है, मैं डिफरेंस नहीं कर रहा हूं, बट वो जिस जिस ग्रेस से वो बेचारी करती है। हाँ, मेरा बेटा गुंडा वो सांप को पकड़, वो सांप भी बेचारी ग्रेस से पकड़ती। अब उसको मैं कंफ्यूज करूं, नहीं तो लड़का है। आई एम नॉट पुटिंग अ, आप मेरी बात को समझो, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़की सांप नहीं पकड़ सकती है, पाइप नहीं चढ़ सकती। मैं कह रहा हूं एक बुनियादी दिखता है, वो जिस फेमिनिटी से करती है, जिस प्यार से वो लड़की करती है, छोटी, वो भी 2 साल की है, 2 साल 1 महीने कुछ, मेरी बेटे से 1 महीने बड़ी है, उसके साथ खेलती है, रिबन पहनते है उसको। अब उसको आप कंफ्यूज करो कि आप लड़के हो, और मेरा लड़का गुंडा यहाँ भाग रहा वहां भाग रहा, उसके कपड़े, आप उसको कंफ्यूज करो, नहीं बेटा आप कौन है हमें नहीं पता, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो भाई? रहने दो ना जैसे वो। इसमें भी कोई बात गलत नहीं, अगर मेरे बेटे को बहुत डिसेंट और बहुत टिप टॉप होना है,
और उस लड़की को रफ एंड टफ, उसमें भी कोई गलत बात नहीं, बट कंफ्यूज मत करो, लेट देम बी देमसेल्व्स, कंफ्यूज मत करो। वो किस्म उनको कंफ्यूज करता है। अगर मैं बात करूं कि बॉलीवुड और पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा शेप करता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को, तो इसके बारे में आपका क्या व्यू है? करता और करना चाहिए, इसमें क्या गलत है, हॉलीवुड भी करता है। इनफैक्ट आई थिंक मोर आर्टिस्ट शुड टेक स्टैंड्स। हालांकि मैं बहुत आर्टिस्ट से उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, बट मैं जेन्युइनली अप्रिशिएट करता हूँ उन आर्टिस्ट को जो पॉलिटिकल स्टैंड्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल अनुपम खेर जी, मैंने पहले किसी के बर्थडे पार्टी में मिला, वी हग्ड एंड वी स्पोक। अनुपम खेर जी वो पॉलिटिकल स्टैंड लेते हैं, ही इज अ मैग्निफिसेंट आर्टिस्ट, माइंड ब्लोइंग आर्टिस्ट, दुनिया के सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट में से। उनके पॉलिटिकल स्टैंड से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, बिल्कुल नहीं रखता हूँ, बट आई अप्रिशिएट द फैक्ट कि वो लेते हैं। कंगना रनौट, I don't appreciate her political stance, but वो लेती है and I appreciate that. ठीक उसी तरह जावेद अख्तर साहब, मैं उनकी मोस्ट बातों से इत्तेफाक रखता हूँ, बहुत प्रोग्रेसिव थॉट है, और लेते हैं स्टैंड, और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। तो आर्टिस्ट को लेना चाहिए, देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट जो चीज दिख के आती है वो हिपोक्रेसी। अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी मोहतरमा है जो फेमिनिज्म की बात करती है, ठीक है, मोहतरमा फेमिनिज्म की बात करती, कोई गलत नहीं उसमें, कीजिए और अच्छी बात है, लेकिन जब उनके शौहर के चुनाव का वक्त आया, वो जाके एक ऐसे मौलाना को मिली जो कहता है लड़कियों को शिक्षा नहीं करनी चाहिए, और तालिबान की उन्होंने तारीफ की। ऐसे मौलाना को जाकर मिली। क्यों भाई? अगर आप फेमिनिस्ट थे, आप फेमिनिज्म में बिलीव करते, क्यों नहीं कि आप जीन्स में उनके सामने, क्यों नहीं कि जीन्स में, और क्यों नहीं आपने उस मौलाना को कहा कि तालिबान गलत है, लड़कियों की शिक्षा बंद कर रहा है? ऐसे मौलाना के पास क्यों कि अपने शौहर के लिए वोट के भीख मांगने के लिए? सॉरी, ये हिपोक्रेसी है। जावेद अख्तर साहब की मैं रिस्पेक्ट करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, वो ना यहां जाएगी ना वहां, वो अपने स्टैंड पे कायम है। अनुपम खेर की मैं रिस्पेक्ट करता हूं, वो जिसमें बिलीव करते, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं उनके व्यू पॉइंट से, लेकिन वो रखते, वो ऐसे इनके पास नहीं जाएंगे हाथ जोड़ने। आप फेमिनिज्म की बात करोगे और शौहर का चुनाव होगा, तो आप ऐसे मौलाना के पास जाओगे कि नहीं लड़कियों को ढककर रहना चाहिए, तालिबान करेक्ट है, लड़कियों को स्कूल नहीं जाना चाहिए, तब आपका फेमिनिज्म कहाँ गया? वो भूल गए, वो हिपोक्रेसी है। वो आप पॉडकास्ट में यूज के लिए कर रहे हो, उनको मैं रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। आपको लगता है कि पब्लिक फिगर्स को स्क्रूटिनी काफी किया जाता है? करना चाहिए, मेरी स्क्रूटिनी होती है, होनी चाहिए। क्यों भागू मैं अपनी स्क्रूटिनी से? अगर मैं अपने आप को पब्लिक में डाल रहा हूं तो क्यों नहीं होनी चाहिए स्क्रूटिनी मेरी? बिल्कुल होनी चाहिए। बट स्क्रूटिनी का मतलब ये नहीं अभद्रता कि मेरे परिवार को आप धमकी दो। आप मेरी चीजों से अग्री करो ना करो, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, एंड आई एम मैन इनफ टू टेक इट। गिव इट टू मी ऑन द चिन, आई विल टेक इट। गिव इट टू मी इन माय सोलर प्लेक्स, आई विल टेक इट। बट नो, डोंट इन्वॉल्व माय फैमिली, दैट्स नॉट राइट। प्लीज स्क्रूटनाइज मी, वेयर आई एम गोइंग, हु आई एम हैंगिंग विद, मैं किन के साथ जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, किसके साथ बैठता हूँ, वो सारी चीजें एग्रीड है। तो आपको इससे मेंटल फैटिग या बर्नआउट नहीं होता? मुझे नहीं, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, मेडिटेट करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, मैं बर्नआउट होता नहीं। बर्नआउट आप जानते हो, मैं आपको मेरा स्केड्यूल बताऊँ, मैं 4 बजे सुबह उठता हूँ, मेडिटेट करता हूँ, अपना तंत्र करता हूँ, 5 साढ़े 5 बजे तक मेडिटेट करते मैं सो जाता हूँ। फिर 6 साढ़े 6 7 बजे जब भी मैं उठता हूँ, फिर अपना जिम जाता हूँ और या अपना काम करता हूँ। फिर दिन भर में मैं अपना काम करते रहता हूँ, फिर शाम को मैं अपना टीवी पे लग जाता हूँ। उसके बीच में मैं दिन में एक ही बार खाना खाता हूँ। खाने टाइम में दिन में देख लेता हूँ क्या है, कौन सी डिबेट्स है, उस पर मैं अपना रिसर्च कर लेता हूँ। और अगर मैंने दिन में किसी कारण वर्कआउट नहीं किया, मैं रात को 12-1 बजे जाता हूँ जिम, 11-12-1 बजे। फटीग और मेंटल ये आप में है, बट हाँ, मैं दूसरों को नहीं कह सकता कि आप मेरी तरह 18-20 घंटे एक्टिव हो। अगर मेरा कोई एम्प्लॉई है, जैसे मेरा ड्राइवर है बाहर, या मेरा गनमैन है, या जो मेरा सेक्रेटरी है बाहर, मैं उनको कैसे बोला 18-20 घंटे काम करो? वो 8 घंटे करेंगे। वो अपने लिए 18 घंटे कर सकते, मैं अपने लिए करता हूँ, मेरा स्टेक ज्यादा है, तो मुझे एड्रेनलिन मिलता है करने। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा टीवी डिबेट्स हो गया 11 बजे, मैं सोया था 8 बजे तक या 7 बजे तक, तो मैं फिर जिम चला जाऊंगा रात को 11 बजे। वो मेरा है ना, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। अपने ड्राइवर को बोलूं कि आप रुको क्योंकि मुझे 11 बजे जिम जाना, ये कहां से सही है? दैट्स नॉट राइट। आपको कभी अपने ऊपर सेल्फ डाउट आया? नहीं। अच्छा, आप कॉन्फिडेंट है भाई, कुछ भी दे दो। ओके। नेवर। ऐसी कोई बाधा नहीं जिसको मैं पार नहीं कर सकता। हर एक बाधा को मैं पार करूंगा। मुश्किल होगी, कठिनाइयां होगी,
परेशानी होगी, तकलीफ होगी, दर्द होगा, अंत में मैं जीतूंगा। आप किसके ऊपर जाते हो जब वर्ल्ड्स नॉइज आपको ओवरवेलमिंग लगता है? किसको आप मेंटर मानते हो अपना? बहुत मेंटर्स है मेरी लाइफ में, बहुत गुरु आए, बहुत गुरु गए। तंत्र साधना के माध्यम से बहुत सारे तांत्रिक और अघोरी बाबाओं से मुझे मिलने का सौभाग्य मिला। ऐसे ऐसे अघोरियों से मैंने मुलाकात की है जिनका आप नाम नहीं जानते, पर इतनी उनमें सिद्धि है, इतनी सिद्धि है। एक एक अघोरी बाबा से जो मैंने मुलाकात की, वो 221 साल के। तो उन्होंने जो मुझे बताया ज़िंदगी के बारे में, तो ऐसे वहाँ से लेकर, उस रेंज से लेकर, ऐसे ऐसे गुरु आए मेरी ज़िंदगी में, ऐसे ऐसे लोग आए जिनसे मोटिवेशन मिला है कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ। मैं सबसे थोड़ा थोड़ा लेता हूँ, सबसे थोड़ी 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 चीज़ लेता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा, मुझे जितना मिले मैं सबसे लेना चाहता हूँ। ये आप भी दो, क्योंकि ज्ञान मिलना चाहिए, चाहे फिर वो कहीं किसी की कविता हो, चाहे फिर किसी का वो हो, चाहे फिर वो किसी की बातें हो, चाहे फिर वो सक्सेसफुल व्यक्ति हो, चाहे फिर वो स्पोर्ट्समैन हो। मुझे हर व्यक्ति से, मैं आपको जब अपने एमएमए फाइट की कह रहा था, और जब मैं वो प्रोफेशनल फाइटर के खिलाफ लड़ रहा था, मेरे कोच के कज़न के खिलाफ, तो जब वो मुझे मार भी रहा था तब भी मैं कुछ ले रहा था कि यार ऐसा मस्त मार रहा है, मुझे भी ऐसे मारना चाहिए, ये सीखना चाहिए ऐसे मारते। जैसे उसने मेरे कुछ मूव्स ब्लॉक किए, उसने, मैं कोशिश कर रहा था उसको नीचे गिराने की, उसने ब्लॉक किए, वो भी मैंने लिया कि ये मुझे ऐसे ब्लॉक भी कर सकते। वो भी तो सीखा है, सीख तो मैं पिट्टे पिट्टे भी सीखा, मैं बहुत पिटा, वो भी सीखा। ठीक है, मैच ड्रॉ हो गए क्योंकि स्कोर नहीं था, वरना वो जीतता, पर पिट्टे पिट्टे भी सीखा मैंने। यार टू गुड। यार आपका माइंडसेट होना चाहिए ना सीखने का। मैं तो सबसे लेता, वो भी तो मेरा गुरु था, उससे भी सिखा कि भाई तू कोशिश करेगा मुझे इसे गिराने के, मैं नहीं गिरूंगा ऐसे। सीखा, मैं उस रिंग में सीखा, मैंने उसको इम्बाइब किया। मैं अपने जिम में सीखता हूँ, मेरे ट्रेनर से सीखता हूँ, मैं अपनी मॉम से सीखता हूँ, मैं अपने ड्राइवर से सीखता हूँ। राइट। आज जब मेरी आने में जब लेट हो गया मेरी कार में, मैंने आपको बताया, मेरे ड्राइवर से सीखा कि ये ऐसे इश्यू होता है, इसको हम गाड़ी चेंज कर लेंगे, वरना 1 घंटा लगता, मैं दूसरे ड्राइवर को बुलवाता, इमीडिएटली गाड़ी चेंज कर दी। ड्राइवर ने आइडिया दिया, आप आपके गनमैन को बोलो गाड़ी ले जाए, मैं आपको यहाँ ले जाता हूँ, वो चेंज हो गया। मेरा जो काम को 2 घंटे लगता वो 20 मिनट में हो गया। इसलिए मैं 25 मिनट्स लेट पहुंच गया, क्योंकि उसने हैंडल कर दिया। उससे भी सीखा मैं, वरना मैं तो अपने फोन्स पे था, मैं अपने मेडिटेशन में था, पॉडकास्ट की मैं तैयारी कर रहा था। उसने सोचा, मैं ये सोचता नहीं, क्योंकि मैं तो यही सोचता यार मेरी गाड़ी में है, मैं दूसरी गाड़ी बुलाता हूँ, दूसरा ड्राइवर बुलाता हूँ, वो आएगा, फिर मैं उस गाड़ी में होगा। उसने बट पॉडकास्ट करना था, टाइमिंग था हमारा, आपने स्टूडियो बुक किया, उसने सोल्यूशन निकाला, मैंने उससे भी सीखा। मेरे शायद जहन में नहीं आता सोल्यूशन, शायद आता, मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा था, उससे भी सीखा मैंने, सोल्यूशन मिल गया। आपने जैसे बताया कि आप मेडिटेशन काफ़ी ज़्यादा करते बहुत हो, करता हूँ तो आप स्पिरिचुअल भी हो? वो, दैट्स नॉट फॉर मी टू से, बट हाँ मैं स्पिरिचुअलिटी के पार्ट पे चलता हूँ। ओके। मेडिटेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा तंत्र, मेरी साधना, ये क्वांटम है, मेडिटेशन इज क्वांटम। आप अपने आप को थोड़ा प्रिविलेज फील करते हो? मैं समझता हूँ मानवता प्रिविलेज्ड है। हम एक ऐसे फाइनाइट लिमिटेड यूनिवर्स में रहते हैं जहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हम्म और बिलियंस ऑफ स्टार्स है। सूरज की तरह बिलियंस ऑफ स्टार्स है, हम्म ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स और स्टार्स है। हमारे कुछ लाइट ईयर्स दूर एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जिससे हमारी मिल्की वे कुछ मिलियन ईयर्स में टकराएगा। और इस पूरी कायनात में जो फाइनाइट है, जो हमें दिखती है, जो 13.8 बिलियन ईयर्स पहले शुरू हुई, मात्र हम एक इंटेलिजेंट लाइफ है। ओके। आज से 300 साल पहले आपके दादा दादी के पास गीजर और हॉट वाटर शावर नहीं था। 300 साल पहले। पिछले कुछ सालों में आपका ब्रेन 30% बढ़ा है। आप मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से एक कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कुछ बिलियन ईयर्स में पहुंचे, और कुछ 100 ईयर्स में आपने इतनी प्रोग्रेस की है। आज से कुछ 100, 150, 200 साल पहले आपकी एवरेज लाइफ स्पैन 50 में थी, दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। वो आज 70 पे, 75 पे पहुंच गई। और हम एक ऐसी दुनिया में आप रहते हैं कि हम स्पेस में कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं। ओके। ऑलरेडी हमने किया है स्पेस में कंस्ट्रक्शन। इलॉन मस्क के रॉकेट्स द्वारा हम फ्रीक्वेंट स्पेस विजिट्स कर सकते हैं। हम अगले 100 सालों में एक नए प्लैनेट पे रह सकते हैं, मार्स के ऊपर, या किसी प्लैनेट के मून के ऊपर हम रह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ गई है। हम इंटरस्टेलर प्लैनेट
प्लानिटेरियन स्पीसीज हो गए। इससे ज्यादा हम क्या किस चीज का हम ग्रेटिट्यूड नहीं माने। ये हमारी लाइफ टाइम में हो रहा है। हमारी लाइफ टाइम में एक रॉकेट स्पेस में गया, वहां पर जाकर स्काई स्क्रेपर जैसा रॉकेट वापस आया, ठीक उस जगह रीयूजेबल रॉकेट हमने बनाया। अब हम कितना स्पेस टेक्नोलॉजी ले जा सकते हैं। स्पेस में हमने ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन तो किया है, स्पेस स्टेशन वगैरह। अब सोचिए हम क्या कर रहे हैं। हमने हमारी लाइफ टाइम में एक प्लैनेट, एक स्पेसशिप थी, एक एस्ट्रॉइड को गई, वो स्पेसशिप ने उस एस्ट्रॉइड के पास गई, वहां से एक रोबोट निकाला, वो रोबोट उस एस्ट्रॉइड पे गया, वहां से उसका मटेरियल को उठाया, वापस उस स्पेसशिप में आया, स्पेसशिप गया यूएसए के ऊपर, और वहां पर उसने उस रोबोट को, उस कंपोनेंट को छोड़ दिया, और वो बिल्कुल उस डेजर्ट में आया और उसको फाइंड किया, और हमने उस एस्ट्रॉइड के प्रॉपर्टीज को पढ़े। हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ कि जो पब्लिक फिगर्स का हम इग्नोर करते हैं या हम देखते नहीं हैं उतना। मुझे लगता है पब्लिक फिगर्स को एम्पैथेटिक होना चाहिए, क्योंकि लोग आपके पास अपेक्षा से आते, उम्मीद से आते। आप किसी के लिए कुछ करो या ना करो, उम्मीद मत उनकी तोड़ना, बदतमीजी मत करना। मेरे पास कोई भी आता है, मैं उनको बहुत प्यार से, विनम्रता से, इस चीज़ का ग्रैटिट्यूड देते हुए कि वो मेरे पास आए और मुझे मैं एक माध्यम बन सकता हूँ कि उनकी मैं मदद करूँ, और पूरी ईमानदारी से मैं कोशिश करता हूँ उनकी मदद करने की, पूरी ईमानदारी से। और आप कोई लेगेसी छोड़ना चाहो अपनी 5 साल बाद, तो क्या लेगेसी आप छोड़ना चाहोगे? अगर मैं 50 साल बाद की बात करूं तो? एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारत को ऐसी ऊंचाई पर ले गया जहाँ पर हर एक भारतीय को वो सारी चीज़ें मिली जिसके लिए हम आज़ाद हुए। फुल लिबर्टी, कहीं सरकार का हस्तक्षेप नहीं, टॉप क्लास हॉस्पिटल्स, टॉप क्लास एजुकेशन सेंटर्स, हर बच्चा भारत का टॉप क्लास बच्चा है, आगे बढ़ रहा है। स्पोर्ट्स में हम आगे हैं, शिक्षा में हम आगे, स्पेस रिसर्च में हम आगे हैं। मुझे ग्लोबल पावर नहीं बनना है, मुझे ग्लोबल पार्टनर बनना है। मैं सबका दोस्त हूँ। लोग मुझ पर डिपेंड कर सकते हैं, मेरे देश पे, मेरे देशवासियों पे डिपेंड कर सकते हैं। कहीं पर कुछ भी, किसी मुल्क पे कोई भी कोई समस्या होती, कोई भी उन पर कोई कठिनाई आती, सबसे पहले मेरे भारत के लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। मेरा भारत का रिलीफ मटेरियल जाएगा, मेरे भारत की टेक्नोलॉजी वहाँ पहुँच जाएगी उनकी मदद करने के लिए। ओके। मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी को बनाऊंगा नहीं, मैं टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करूंगा। मैं ऐसी लेगेसी छोड़ना चाहता हूँ मेरे देश के लिए। तो आप ये बताओगे कि लाइफ का अगर कोई चैप्टर वापस से लिखना हो तो आप कौन सा चैप्टर लिखना चाहोगे अपने लाइफ में? लाइफ हैज़ बीन वेरी गुड टू मी। ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में परेशानी नहीं आई, प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे आए, बहुत सोचता हूँ तो इमोशनल भी होता हूँ। डैड का गुजर जाना वगैरह वगैरह। लोग हंसे भी मुझ पर जब मैं कहता था कि मुझे टीवी पे बात करना है, तो लोग हंसते थे, कहते थे यार आप पुणे में रहते हो, आपको क्या करना है। लोगों ने डराया भी, बट मैं उस सब चीज़ को रिस्पेक्ट करता हूँ। उसी ने तो मुझे आज बनाया जो मैं हूँ। आज अगर मैं श्रेयांश के साथ बैठकर यहाँ पर पॉडकास्ट कर रहा हूँ और मैंने कुछ अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा अचीव किया है, तो मैंने उस चीज़ से मैं पीछे नहीं हटा। मैंने अपनी बिलीफ पर मैं कायम रखा। और हो सकता है कि मेरा पॉडकास्ट सुनकर कहे आपका विजन बहुत बड़ा है, हो सकता है, लेकिन विजन तो गांधी का भी था ना कि देश आज़ाद होगा। विजन तो नेहरू का भी था ना कि भारत का हर देश में एक फॉरेन सेंटर होगा। विजन के बिना हम क्या है। विजन तो मोदी जी का भी था ना कि भारत के लिए वो कुछ करेगी 2014 के बाद। हालांकि मैं अपोज करता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा नहीं किया, बट जोक्स अपार्ट, विजन के बिना आदमी क्या है। विजन तो था ना इलॉन मस्क का कि मैं रीयूजेबल रॉकेट बनाऊंगा। विजन तो था ना आइंस्टाइन का कि उसने हमें E=mc² दिया फॉर्मूला, जिससे पूरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बदल गई, जिसने हमें स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी दी। विजन था ना, वरना तो लोग न्यूटोनियन ग्रेविटी और न्यूटोनियन फिजिक्स को मानते थे। बिना विजन के आदमी क्या है। विजन तो स्टीफन हॉकिंग का भी था, किसने ब्लैक होल्स को स्टडी किया, उसने हमें ब्लैक होल्स के बारे में बताया। मतलब आसमान में, यूनिवर्स में ब्लैक होल पढ़ा, उसको पढ़ रहा है एक आदमी व्हील चेयर के। विजन था ना कि इसके थ्रू, वर्म होल के थ्रू, क्या हम स्पेस ट्रैवल या क्या हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। उसने उसका फिजिकल, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया। विजन तो था ना श्रोडिंगर्स का, किसने हमें वो इक्वेशन दिया, द कैट इज बोथ डेड और अलाइव इन द बॉक्स। विजन के बिना आदमी क्या है। एक किसी का विजन तो होगा ना उस पहले आदमी का कि मैं पत्थर को इतना करूंगा तो आग लगेगी। उससे तो मानवता की प्रगति हुई, इससे तो मानवता दुनिया पे राज कर रहा था। आप सोचो अगर डायनासोर्स का विजन होता तो उनका स्पेस प्रोग्राम होता, स्पेस प्रोग्राम होता तो डायनासोर्स एक्सटिंक्ट नहीं होते। नहीं था ना डायनासोर्स का विजन, इसलिए एक्सटिंक्ट हुए ना, क्योंकि उनका कोई स्पेस प्रोग्राम नहीं था।
डायनासोर्स क्यों एक्सटिंक्ट हुए? क्योंकि उनका कोई स्पेस प्रोग्राम नहीं था। राइट। मानवता क्यों जिएगा? क्योंकि हम बता रहे हैं हम दूसरे प्लेनेट पे जाएंगे या किसी प्लेनेट के मून पे जाएंगे, हमारा स्पेस प्रोग्राम है। डायनासोर्स और हमें फर्क क्या है? विजन। हो सकता है लोग आज इलॉन मस्क का मजाक उड़ा रहे हो, मार्स में जाकर रहेगा, पागल इंसान है, अर्थ को क्यों ठीक नहीं करता। हो सकता है लोग तहसीन का मजाक उड़ा रहे हो कि तहसीन कह रहा है कि भारत किसी प्लेनेट के मून के ऊपर एक हैबिटेबल प्लेनेट बनाएगा कि हम वहां पर भी रह सकते हैं। हो सकता है, लेकिन विजन है ना। अगर वो विजन डायनासोर्स के पास होता तो वो एक्सटिंक्ट नहीं होते। वो विजन है और करेंगे। अगर डायनासोर्स में इतनी अक्ल होती और स्पेस प्रोग्राम होता तो आज एक्सटिंक्ट नहीं होते। वो एस्ट्रॉयड आता उसको हटा देते। आज नासा और दुनिया के सारे बड़े लेबोरेटरीज देखते कोई एस्ट्रॉयड भारत दुनिया को हिट कर सकता है या नहीं। देयर इज रियल टाइम ऑब्जर्वेशन ऑन दैट। आज आप हैं, इसलिए वी आर नॉट गोइंग टू बी हिट बाय एन एस्ट्रॉयड ऑन लार्ज, लाइक 99% हम नहीं हिट हो गए एस्ट्रॉयड से, क्योंकि वी हैव अ स्पेस प्रोग्राम। व्हाट वाज द आइस एज जब डायनासोर्स चले गए? एस्ट्रॉयड ही लगा था ना। राइट। नहीं था ना डायनासोर्स का विजन। हमारा विजन है। बिना विजन के आप डायनासोर हो भाई। आपको लाइफ में अपना एक फेलियर याद है जिससे आपने काफी कुछ कहीं सीखा? कहीं फेलियर्स आते हैं, बहुत चीजों में फेल हुआ, लेकिन मैं डरा नहीं हूँ। बहुत चीजों में। ओके, एक अगर बताना चाहो। नहीं, बहुत सारे। एक क्या बताओ, बहुत सारे ऐसे फेलियर्स है जो, लेकिन मैं एक पर्सनल फेलियर शेयर करूँगा। मुझे लगता है कि जब मेरे भाई और मेरे बीच में हम सेपरेट रास्ते गए तो वो मेरी तरफ से फेलियर था कि मैं वो उसका साथ नहीं रख पाया। उस फेलियर का मुझे आज भी वो होता है कि यार हम साथ होते तो, वो लगता है मेरा भाई है, लगता है वो बहुत लगता है। बट ठीक है, लाइफ गोज ऑन। अब बात नहीं करते हो इस बारे में? आई एम एट पीस विद इट नाउ। बट देखो वो भी अच्छा हुआ, क्योंकि जब वो फेलियर हुआ, वो बीजेपी में गया। इज अ टॉप स्पोक्स पर्सन फॉर द कंट्री टुडे। देश का एजेंडा तो पूरे दिल्ली चुनाव अगर बीजेपी जीती है दिल्ली, उसमें अगर 4-5-6 लोगों को श्रेय मिलना चाहिए। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर मोदी को, वो मोदी जी के नाम पे चुनाव हुआ था। बट उसके अलावा जो उसने ग्राउंड पे काम किया, मैं उसका वीडियोस देखते हैरान होता था, जिस तरह से उसने आम आदमी पार्टी को एक्सपोज किया। हालांकि मैं आम आदमी पार्टी की तरफ थोड़ा सिंपैथेटिक होगा वर्सेस बीजेपी, बट यार क्या काम किया। वो बीमार हो गया, उसको उतना काम किया, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। तो ठीक है, वो भी अपनी लाइफ में ऊंचाई को पा रहा है, तो खुशी है। ओके, आपका एक सक्सेस मंत्र? मेरा सक्सेस मंत्र है जस्ट चिल। दुनिया को जो करना है करने दो, तुम अपने काम करते रहो। ओके, और अगर कोई सजेशन देना चाह रहे हो, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, क्या सजेशन देना चाहोगे जनता को? आज से 25-30-35 साल बाद हम कम से कम ऑन एवरेज 100-125 साल जिएंगे, और ये बहुत मुश्किल नहीं है। हम 40 से 70 पे आ गए, 70 से 125। हाँ, लाइफ स्पैन एक्सपैंड हो रहा, क्वालिटी लाइफ। हमें ऐसी एक दुनिया बनानी है जिसके चलते हम लोगों के लिए कुछ पॉजिटिव कर सके। ये चीज याद रखो कि अब हम सब 100% जीवित रहने वाले। हम में से कोई मरेगा नहीं, कम से कम डिजिटली हम में से कोई नहीं मरेगा। ये यूट्यूब वाला इंटरव्यू हमेशा रहेगा, मैं जिंदा रहूं या नहीं रहूं बॉडी में, ये मेरा इंटरव्यू हमेशा चलेगा। राइट। डिजिटली हम हमेशा जिंदा रहेंगे। और आज से 20 साल बाद जब क्वांटम कंप्यूटर्स रियल हो जाएगा, मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन ने वो मेरे से बात करेंगे। हालांकि मैं 4D वर्ल्ड में नहीं रहूँगा, क्योंकि वो मुझे सिम्युलेट करेंगे। मैंने जो चीज़ें बताई AI के माध्यम से, वो डेटा को इंटीग्रेट करते जब वो मेरे से कॉन्फ्रेंस करेंगे, हालांकि मैं जिंदा नहीं रहूँगा, बट मेरे वर्जन से, मेरे डिजिटल वर्जन से कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो डिजिटल वर्जन उन्हें वही चीज़ बताएगा जो मेरी सारी बिलीफ से जो डिजिटली स्टोर्ड है, उसको वो समराइज करते मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन या ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, मैं तो नहीं रहूँगा, दे विल टॉक टू द ग्रेट ग्रैंडफादर। तो ऐसी लेगेसी बनाओ कि याद रखो कि आपके बाद की जो जनरेशन है वो आपसे बात कर पाएंगे, आप चाहे हो या ना हो, इन एन AI वर्ल्ड। तो लेगेसी बनाओ, क्योंकि वो AI पिकअप करेगा।